Hello friends, I am Mukesh Dhanuka. Welcome back to my YouTube channel, Institute of Mathematics and Physics. Now we'll go for the class 11 topics and I will start the 11 topics from the chapter trigonometric functions. Okay, so as you have read in the class 10 that what is the trigonometric function you have. Already we have seen the trigonometric function we have is sine, cos, tan, cosec and sec. But in this chapter, we'll see in the brief idea what are the use of trigonometric function and how can we solve the trigonometric equation, trigonometric functions and etc. Now, what do you mean by trigonometric? The trigonometric word is consist of the three words trigon, trigon and metric. So metric is nothing but that measurement. Gon is the side and tri means the three. So trigonometric is nothing but the study of the three sides, measurement of the three sides of the triangle, or I can say that it is also the study of the measurement of the angles in a triangle. Okay, we'll start from the trigonometric function. What are the trigonometric function? We'll see. I can say that the trigonometric function is also a circular function. Why I am saying this one? Because consider a xy plane, because I am saying that consider xy plane because I can say that coordinate plane xy plane. I have considered a xy plane. So this is the xy plane, this is x axis, this is y axis. Okay, and O is the center. Consider O as a center, and draw a unit circle. What is the unit circle? Circle having radius is equal to 1. So I am drawing a unit circle. Suppose this is a unit circle. Okay, suppose this one is the unit circle. I have drawn something right. Okay, this is a unit circle. Radius means 1. This will be A point, this is B point. Suppose this is B dash and this is suppose A dash. Okay, so what is the length of OA? OA is equal to 1, right? Because of this radius, let us consider a point P of xy on it. I have considered a point P of xy on it. Suppose that point is here in the first quadrant. Okay, next I will draw the OP. And I draw a perpendicular from the P to the x-axis, that it be Q point. Okay, let the angle made POQ, or I can say that QOP is that angle is theta. Okay, the angle in angle, what is the angle of a triangle? Okay, means angle, and what is the angle? We'll discuss a totally angle on a one more channel, on one more class. But I will just describe what is my angle. Angle is always measured in anti-clockwise direction, right? Means in this direction I will always measure the angle. Okay, if I am measuring the angle in anti-clockwise direction, I will take as positive. If I measure the angle in clockwise direction, if I go for the clockwise direction, this is a negative angle. Okay, we'll see in some one more class what is my angle, what type of angle we have, what is the measurement of the angle, how can I measure the angle, and what are the different types of measurement we have. We'll discuss in one more class. Now just remember that if angle is measured in anti-clockwise direction, we take as positive. If it is measured in the anti-clockwise in the clockwise direction, we take as negative angle. Right. So let QOP is a angle theta. So I am writing QOP is equal to theta. So can you see that what's the length of OQ? Just try to say it. What's the length of OQ? OQ is nothing but I have drawn the perpendicular. So this is the perpendicular. So I can say that OQ is equal to x and PQ is equal to y. Yes or no? Like here, for example, suppose we have a point 1, 2 here. Suppose I am drawing the perpendicular here P, and this is suppose Q. This length is nothing but 1 and this length is nothing but y. Correct? So exactly same thing is here. The OQ length is x and the PQ length is y. And what's the length of OP? And this is the radius. OP is equal to 1. Correct? Now what trigonometric function we have studied in the class 10? We have seen 6 types of trigonometric function. What is the sine theta?
is nothing but the perpendicular by the hypotenuse, right? So what's the perpendicular length here? Y, and the hypotenuse is 1. So I can say that this is y by 1 and this is nothing but y. Okay? But what's the cos theta here next? Cos theta is nothing but b by h. What's the b here? X, and this one is 1, x by 1. I know that you have studied this one in the class 10, but I will relate these to next 2 or 3 things. So make it remember. Again I am repeating. मैं बताना चाहूँगा इस चीज को मैं आगे यूज करूँगा y x. आप देखते रहिए कितने सिंपल वीडियो हम लोग इसको यूज करेंगे. लास्ट तक देखिए वीडियो को, आपको इस चीज से बहुत कुछ हेल्पफुल होगा. Okay, next one is the tan theta. I can say that tan theta is nothing but p by b. You know that p is y and x, b is x, so this is y by x. Now what is that cot theta? Cot theta is nothing but b by p, that is nothing but x by y. Okay, next one is that sec theta. Sec theta is nothing but h by b. h by b बोले तो 1 by x. Cosec theta क्या होगा यहाँ पर h by p, and this is nothing but 1 by y. ये चीज तुम लोग को अच्छे से पता है. बट अब ठीक है, मैं तुमको यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस जगह पे. sin थीटा का वैल्यू हो गया y, cos थीटा हो गया x, tan थीटा y by x, cot थीटा x by y, sec थीटा 1 by x, cos थीटा 1 by y. प्लीज नोट इट डाउन. उसके बाद मैं क्यों रिलेट करूँगा लास्ट में, देखिए मजा आएगा. ओके, लेकिन मैं एक चीज यहाँ बोल सकता हूँ, इसको रफ नहीं करूँगा, रहने दो, भी मेरे पास कुछ काम आएगा मेरा, इसको रफ कर देते हैं. ओके, from these things I can correlate. तुमको पता है already tan theta is nothing but sin theta by cos theta, because देख लो sin theta tan theta क्या है, y by x, and what is y? Y is nothing but sin theta. What is x? X is nothing but cos theta. So I can simply say that tan theta is nothing but sin theta by cos theta, or I can say that simply 1 by cot theta. Now I can say that cosec theta क्या होगा, 1 by sin theta है, कोई देखो तो, क्योंकि cosec theta क्या है 1 by y, so I can say that 1 by sin theta, or you can say that cos theta is equal to 1 by sec theta, vice versa. मैं sin theta को 1 by cosec theta बोल सकता हूँ, sec theta को 1 by cos theta बोल सकता हूँ. These are the things we have already seen in the class 10. Okay, one more thing we have seen in the class 10 is that unity formula. Yeah, I say that unity formula because that इसके इतने यूज होंगे हमको, हम देखेंगे आगे जाके. So what's the unity formula we have learned in the class 10? We have seen that sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sec square theta minus tan square theta is equal to 1, and one more thing that we have seen that cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. इसके प्रूफ भी मैं तुमको बता देता हूँ, बहुत सिंपल से प्रूफ है. What is sin theta? We have y, and cos theta क्या है, x. So the first proof we have, sin theta is nothing but y. So sin square theta is nothing but sin theta का square. So sin square theta is nothing but y square, and cos square theta, that is cos theta का square. We have cos theta is x, so this is x square. Now from the triangle OPQ, the x square plus y square is nothing but OP square. And what is that OP? OP is nothing but 1. So we have this one is 1. So what we have written 1. The next one is that sec square theta minus tan square theta. You see that what is the sec square theta? Sec theta is nothing but 1 by x. So I can just see that this is 1 by x square minus tan square theta. What is that tan theta? We have y by x. So this is y square by x square. So now this is 1 minus y square by x square. So from the triangle here, 1 minus y square, the Pythagoras formula, this square minus this square is nothing but OQ square. That is OQ is nothing but x square by x square, and this is equal to 1. So similarly I can let this one for you. Sec square theta minus cos square theta 1 होगा. Now ये formula इसलिए important बोल रहा हूँ क्योंकि इसके इतने यूज, हम जितना यूज करें उतना यूज कम है. क्यों? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट रफ इट डाउन. ये चीज़ हमको पता है ऑलरेडी अच्छे से. जो नया चीज सीखेंगे हम मैं बता रहा हूँ. अब उनको what is the sin theta from this one? Sin theta I can say that this is 1 minus cos square theta. From there I got the formula sin theta is nothing but 1 minus cos theta. Sec theta का formula क्या हो सकता है? This is nothing. I can say this is plus or minus, right? Sec theta is nothing but 1 plus or minus root over 1 plus tan square theta. Or cosec theta is nothing but I can say that plus or minus root over 1 plus cos square theta. Okay, I can use this one.
मैं एक नंबर करवाता हूँ जिसमें तुमको इसके यूज पूरा पता चलेगा कि कहाँ यूज होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट ड्रॉप दिस वन बिकॉज ये मेरे काम आएंगे. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था एग्जाम पे आया हुआ था. क्वेश्चन दिया है इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड टेन थीटा. या फिर तुमको साइन थीटा पूछा गया या फिर सेक थीटा पूछा, कुछ भी पूछा गया. तुमको खाली दिया है sec theta minus tan theta is equal to 3/4. Then you have to find the value of tan theta, sin theta and cos theta. हमको कुछ भी निकालने के लिए अगर पूछा गया तो हम कैसे निकालेंगे? So from this inequality, I can say that this is inequality. Sec square theta minus tan square theta, you know that one. अब देखो, इसको एक बार रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे मैं यूज करूँगा, फिर से लिखेंगे एक बार. Okay, we have sec square theta minus tan square theta is equal to 1. I apply the formula of e square minus b square. This is nothing but sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta is equal to 1. Correct? Right? But we have sec theta minus tan theta is 3/4. So what's the value of sec theta plus tan theta? Is nothing but 1 by, ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 3/4. So this is nothing but 4/3. So now we have sec theta minus tan theta is equal to 3/4 and we have sec theta minus tan theta is equal to 4. This is 3/4 and sec theta plus tan theta is equal to 4/3. अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कैंसिल हो कि ये 2 sec theta is equal to क्या दे देगा 3/4 plus 4/3. The LCM is 12. 3 3 are 9. 4 4 are 16. That is 25/12. Okay. So what's the value of sec theta? यहाँ से निकल जाएगा sec theta is equal to 25/24 और cos theta is equal to 24/25. Similarly, I can find the tan theta by subtracting. यहाँ पर मैंने ऐड करा, यहाँ तुम subtract कर दोगे तो 2 tan theta निकल जाएगा. So in this way, I can find all the values given for this thing. तो इस टाइप के नंबर इसको यूज करना आपको सीखना चाहिए. तो आगे हम इसको यूज करेंगे. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरी पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरी है. ये चीज़ अब तक तुमने क्लास 10 में पढ़ चुका था. अब कुछ नया सीखेंगे क्लास 11 के लिए. जस्ट आई एम रफिंग दिस वन, रफ कर दे रहा हूं मैं. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर राइट नाउ. मैं क्या करा, ये सेम एंगल थीटा है, सेम एंगल मैंने नीचे ड्रॉ करा. आई ड्रॉ द सेम एंगल जो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया था, वही एंगल मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया. देखो एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल का चेंज दिया मैंने, यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया एंटी क्लॉकवाइज. तो ये तो एक्स था ऊपर लिख दिया. ये एंगल क्या हो जाएगा माइनस थीटा. जैसे मैंने तुमको बताया अगर क्लॉकवाइज में मापते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है. तो लेट इट बी, मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया. सपोज दिस इज पी डेक्स. ओके, ये एंगल थीटा, इसका लेंथ कितना, ओपी का लेंथ, ओपी डेक्स का लेंथ होगा 1. ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस वाई बिकॉज द पॉइंट यहाँ एक्स वाई. तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई. ओके, सो OQ इज नथिंग बट माइनस वाई, सॉरी पी डेक्स क्यू, ये एक्स था. अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OQP डेक्स, इन ट्रायंगल OQP डेक्स. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा? क्योंकि मैंने तो अब ये एंगल है मेरे लिए ना, तो साइन ऑफ माइनस थीटा, यू नो दैट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो व्हाट इज दैट परपेंडिकुलर हियर, -y/1 and this is nothing but -y. अब मुझे आप पूछ सकते हो कि सर PQ का लेंथ तो नेगेटिव कैसे हुआ? नेगेटिव नहीं हुआ बच्चों. अगर सपोज दैट ये पॉइंट होता 1, -2, y का वैल्यू क्या है? तो ये हम लेंथ के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ये P डेक्स Q. तो दिस इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट -y/1 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. यहाँ पर अगर एक पॉइंट हुआ y कोऑर्डिनेट जो भी हुआ, y कोऑर्डिनेट का नेगेटिव एंगल ले रहे हैं यहाँ पर, नेगेटिव, क्योंकि उसको पॉजिटिव करना है यहाँ पर. ठीक है. सो अगर ये पॉइंट 1, -2 हुआ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर? y इज -2. दैट्स व्हाई -y, क्योंकि y वहाँ पर अगर ये 1, 2 होता है, ठीक है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा 1 -2 हो जाएगा. दैट्स व्हाई -2 -2 इज पॉजिटिव हियर. तो PQ का लेंथ क्या हो जाएगा? P डेक्स Q हो जाएगा -QI/1. दैट्स व्हाई -y. सिमिलरली मुझे बताओ cos ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस.
base by hypotenuse, this is x by 1, this is equal to x. Again I am repeating, ये जो एंगल आया नीचे आया नेगेटिव एंगल हुआ ना, इस एंगल को मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड बेस बाय हाइपोटेनस फॉर द cos थीटा। ये पॉइंट 1 का मान अगर x कमा हुआ है तो ये पॉइंट क्या होगा x कमा माइनस y, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी माइनस y। या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो आप लोगों को, मैंने माइनस y लिखा है और ये लेंथ वो x ही है क्योंकि इसके हिसाब से। ओके मैंने जैसे बताया अगर ये पॉइंट 1 कमा 2 है तो ये पॉइंट क्या होगा 1 माइनस 2। नाउ इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y का वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ y, राइट, इसीलिए माइनस y बाय x, दैट इज माइनस 1 माइनस y बाय 1। सिमिलरली tan थीटा क्या होगा, tan ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस y बाय x, तो दिस इज नथिंग बट माइनस y बाय x। cot ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, दिस इज माइनस x बाय y, तो माइनस x बाय y लिख रहा हूँ। अब रुको 2 मिनट वेट करो, देखो क्या यहाँ पर पता चलेगा मुझे। sec थीटा क्या होगा 1 बाय x, तो ये 1 बाय x रहा। cosec ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, इट इज माइनस 1 बाय y, माइनस 1 बाय y। अब तुम अपने पेज को पलटो और वहां पर देखो sin थीटा क्या था, sin थीटा ऊपर वाले में था y और cos थीटा था x, tan थीटा था y बाय x और थीटा था x बाय y। अब लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा क्या निकला माइनस y, आई कैन से दिस इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा, क्योंकि y का वैल्यू क्या था ऊपर, मैंने जो y का वैल्यू निकाला था क्या निकला था माइनस साइन थीटा निकला था, बट y का वैल्यू निकला था साइन थीटा, माइनस है तो माइनस साइन थीटा हुआ। cos ऑफ माइनस थीटा x निकला और व्हाट इज x, x का वैल्यू कितना आया था हमारा, दिस इज नथिंग बट cos थीटा, करेक्ट। Now tan of minus theta equal to minus y by x निकला है, कोई बात नहीं, but what is y by x? y by x हमारे previous में निकला था tan theta, so this is nothing but minus tan theta, or I can say that simply minus cot theta. This is same as sec theta, and this is minus cosec theta. तो एक चीज यहाँ पर तुम देख सकते हो, sin of minus angle is equal to minus of sin angle, cos of minus angle is same as cos theta। तो यहाँ पर अब माइनस एंगल को, नेगेटिव एंगल को कौन कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, देखो cos एंड sec माइनस को एब्जॉर्ब कर लिए, खा लिए, cos ऑफ माइनस पे इज cos थीटा एंड sec ऑफ माइनस पे इज sec थीटा, बिकॉज़ उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी ने माइनस को क्या करा बाहर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। फॉर एग्जांपल अगर तुमको पता हो माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होगा, यू नो दैट sin 60 का वैल्यू, पर तुमको पूछोगे sin ऑफ माइनस 60 क्या होगा, तो माइनस 60 इस जगह पे क्या करना है हमको, मुझे पता चला कि इस फॉर्मूला से कि sin माइनस को क्या करता है बाहर निकाल देता है, तो दिस इज नथिंग बट माइनस sin 60 एंड दिस इज माइनस √3/2। whereas cos ऑफ नेगेटिव एंगल क्या होगा, cos ऑफ माइनस 60 क्या होगा, माइनस को cos हजम कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा cos एंड sec, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री एंड cos 60 इज नथिंग बट 1/2। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मुझे बताना था कि नेगेटिव एंगल को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, cos एंड sec, और बाकी सब माइनस को बाहर निकाल देंगे। ओके, तो ये सब कहानी था फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। अगर अब मैं तुमको कुछ नेक्स्ट बताना चाहूंगा, प्लीज नोट कर लीजिए। सपोज मैं और एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब मैं तुमको कुछ चीज इंटरेस्टिंग बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड साइन फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन बोल सकते हैं, साइन फॉर्मूला में बोल सकता हूँ उसको, अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं साइन फॉर्मूला। क्या है ये साइन फॉर्मूला, मतलब क्या क्या चीज है ये साइन फॉर्मूला, देखेंगे तो हमने जो यूनिट सर्किल लिया एंड यूनिट सर्किल के बाद मैंने एक पॉइंट जो कंसीडर करा, वो पॉइंट मैंने कहा लिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, राइट, ये थीटा था। तो हमने वहां देखा था sin थीटा इज नथिंग बट y, cos थीटा का वैल्यू क्या देखा था हमने x, tan थीटा का वैल्यू क्या देखा था हमने y बाय x, cot थीटा का वैल्यू देखा था हमने x बाय y, sec थीटा इज इक्वल टू देखा था हमने 1 बाय x, cosec थीटा हमने देखा था 1 बाय y। अच्छा एक चीज मुझे बताइए,
अगर ये पॉइंट मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं लेके सेकंड क्वाड्रेंट पे लेता हूँ। अच्छा, और रिपीट करते हैं और एक बार। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमको पता है x और y बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पे x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पे x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है, राइट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, राइट। तो sin थीटा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे? अगर एंगल मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहा, अगर मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ? दिस इज 0 डिग्री एंड दिस वन इज 90 डिग्री, और आई कैन से दिस इज π/2, और ये कौन सा डिग्री हुआ? 180 डिग्री है, पाई बोल सकता हूं मैं, और ये हुआ 270, और आई कैन से दिस इज 2π/2। मैं इससे फिर से आऊंगा, ये एंगल के बारे में बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग ये एंगल 0 है, ये 90 है, 180 है, ये 270 डिग्री है, और ये फिर से हो जाएगा 360 डिग्री, ये कंप्लीट रोटेशन, राइट। अगर मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंगल मेरा एंगल 0 से 90 के बीच में रहा, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हो गए। क्यों? क्योंकि x और y बोथ आर पॉजिटिव रहेंगे। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो ये पॉइंट कहां पर रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो sin थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, cos थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव, 1 में पॉजिटिव, पॉजिटिव, 1 में पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गए? यहाँ पर पॉजिटिव हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ all the trigonometric function in the first quadrant taking the positive value, right? In the second quadrant, अब second quadrant पे मैं आता हूँ, suppose that ये point आ गया यहाँ पर, suppose p equal to मैंने x, y ले लिखा, मैंने x, y लिखा है, माइनस x करने लिखा है, जो भी x का वैल्यू नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। इस जगह पे मुझे बताओ x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? x नेगेटिव है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ if p of xy belongs to second quadrant q2 बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो यहाँ पर x नेगेटिव रहेगा एंड y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे एंगल क्या हो जाएंगे? sin थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा होगा पॉजिटिव क्योंकि y पॉजिटिव है, cos थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव है क्योंकि x नेगेटिव है। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का कहानी बता रहा हूँ मैं। नाउ tan थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव, cos थीटा पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव, sec थीटा 1 बाय नेगेटिव, नेगेटिव, cosec थीटा 1 बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल रहा मेरा, अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट पे रहा तो मतलब क्या? एंगल कहां से कहां तक? अगर 180 से 90 से 180 के बीच में रहा तो मेरे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहे हैं? sin एंड cosec पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव है। तो मैं यहाँ लिख दिया साइन, अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, वो भी पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन। अगर वही कहानी अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट पे रह गया, अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट पे रह गया है कहाँ, ठीक है, तो वहां पर x नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव है, तो तुम लोग खुद सोचो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव रहेंगे, सोचो फटाफट। तो यहाँ पर मेरे x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो अब ये चीज चेंज हो जाएगा। मैं देखता हूँ फिर से क्या होता है। नेगेटिव है तो चुपचाप नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। नाउ नेगेटिव बाय नेगेटिव यू नो दैट व्हाट इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्योंकि 1 बाय नेगेटिव नेगेटिव, 1 बाय नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो इस जगह पे कौन कौन पॉजिटिव बचा? tan एंड cot, तो मैं लिख दिया यहाँ पर tan, क्योंकि tan पॉजिटिव तो उसका उल्टा बोलूंगा ना, उसका tan का उल्टा cot पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पर लिख दिया t थर्ड क्वाड्रेंट पे। नाउ अगर पॉइंट मेरा रहा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, अगर मेरा पॉइंट रहा फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव बताओ? x होता है पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। तो अब देखते हैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे। सोचो x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव, 1 बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 बाय नेगेटिव नेगेटिव। तो अब कौन कौन सा चीज पॉजिटिव रहेगा? cos एंड sec, तो आई कैन सिंपली राइट दिस इज cos। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहता है तो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट पे मतलब समझ रहे हो, अगर एंगल 270 से लेकर 360 तक होता है तो अब मुझे यहाँ पर एक साइन फॉर्मूला मिल गया। अगर मेरा एंगल
फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑल। अगर मेरा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट पे है और या मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट पे है, मतलब 90 से 180 के बीच में, तो मेरा एंगल क्या होगा, मेरे कौन से फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, साइन एंड कॉसेक विल पॉजिटिव हियर बिकॉज ऑफ द फॉर्म साइन एस। सिमिलरली यहाँ पर tan एंड cot पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पर cos एंड sec पॉजिटिव रहेंगे। तो चलो एक नंबर करते हैं, वो तुमको समझ आ गया। दिस इज कॉल्ड ASTC रूल और साइन रूल भी बोला जाएगा। ओके, नोट करो, उसका एक नंबर करते हैं अभी हम लोग। मैं क्वेश्चन देता हूँ, इफ sin theta is equal to -4/5 and theta is in third quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो समझ आ रहा है, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से लेके 270 तक रहना है। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मुझे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है। अगर sin थीटा -4/5 है तो अब मैं एक चीज यहाँ बोल सकता हूँ, cosec थीटा क्या हो जाएगा, इसका उलट जाएगा -5/4, एक तो पता चल गया हमको। अब sin थीटा पता है तो मुझे cos थीटा ही पता चल जाएगा, बिकॉज आई नो दैट cos थीटा इज नथिंग बट प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज प्लस और माइनस ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज -4/5 का स्क्वायर, so this is nothing but plus or minus 3/5 निकलेगा। लेकिन अब दो एंगल निकला, cos थीटा इक्वल प्लस 3/5 या माइनस 3/5 लेंगे, तुम बताओ क्या लेंगे। सिंस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है, मेरा रूल बोलता है ASTC, और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट पे tan और cot पॉजिटिव रहता है तो cos क्या होगा उस जगह पे, नेगेटिव। तो दिस इज cos थीटा इज नेगेटिव, मतलब मैं लूंगा -3/5। अब cosec थीटा पता चल गया तो मुझे sec थीटा ये पता चल गया, -5/3, उसका उलट गया। अब पता चला बाकी रहा tan थीटा, तो tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा बाय cos थीटा। तो देखो -4/5 बाय -3/5, तो माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 4/3। अब देखो tan क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे था, बोल के पॉजिटिव हो गया, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 3/4। सो दिस इज अबाउट द साइन रूल। तुमको साइन पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम प्लस माइनस 3/5 लिख दो वहाँ पर इस जगह पर। तो ये रहा तुम्हारा ASTC रूल, दैट इज कॉल्ड साइन फॉर्मूला। और तुमको ये पता चलना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट पे क्यों पॉजिटिव हुआ, मैंने तुमको यहाँ पर प्रूफ के साथ बताया। एंड दिस वन इज अबाउट द फर्स्ट क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास विल सी व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगल, कौन से क्वाड्रेंट पे कौन सा एंगल रहता है, हम कैसे निकालेंगे, कौन सा वैल्यू। अब तक हमने सीखा था साइन 0 से लेकर 90 का वैल्यू पता था, अगर बड़ा एंगल दिया होगा तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द नेक्स्ट क्लास इज दैट व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगल। और ये टॉपिक हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, किसी बुक पे तुमको अवेलेबल नहीं होगा, तो प्लीज क्लास नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा। एंड दिस टॉपिक इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।